Welcome to S. Chand Academy. My name is Aditya, and you're watching these videos through S. Chand Academy on their books written by Lakmeer Singh and Manjeet Kaur. So S. Chand Academy brings you these videos to follow up the books by S. Chand Publishing itself, so that you can learn them page by page by understanding through these videos. So this is the video for book of class 10th written by the authors I mentioned, and here we are on chapter number 4. हम अब chapter number 4 start करेंगे, which is entitled Heredity and Evolution. So before we go ahead, हम heredity और evolution के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. Heredity and evolution क्या होता है, इस chapter में content क्या है. So we know that many of the offsprings of different organisms look alike their parents. जो organisms होते हैं, जो offsprings होते हैं, वो पेरेंट्स की तरह रिजेंबल करते हैं. इनफैक्ट आपने कई बार सुना भी होगा कि जब कोई छोटे बेबीज़ होते हैं किसी घर में, तो लोग आकर पूछते हैं कि इसकी नोज़ जो है वो अपने मम्मी से रिजेंबल कर रही है, पापा से रिजेंबल कर रही है, आइज़ किसकी तरह हैं. सो फ्रॉम वेयर दैट रिजेंबलेंस कम्स, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इन साइंस that resemblance are actually transmitted from one parent to their offsprings. So what is responsible for their resemblance? What is responsible for the transmission of these kind of traits from one generation to another? What is the underlying molecular biology of all these things? That is the content of this topic. And now, apart from transmission of the traits, there is also generation of some variability. ऐसा भी नहीं है कि offsprings बिल्कुल identical होते हैं parents के, थोड़ा तो difference होता है उनमें. So from where that variation comes and how that variation is useful for taking down generation to generation and splitting that at some point of time into a new species. So bifurcation of a single population into two different non-reproductive organisms is termed as speciation. और ये पूरा प्रोसेस जो है नई नई स्पीशीज बनने का, इसको हम एवोल्यूशन कहते हैं. आप खुद ही इमेजिन करके देखिए कि आज से 2.5 मिलियन ईयर्स और उससे पहले ह्यूमंस नहीं थे. सो हाउ ह्यूमंस अपीयर्ड. और भी अगर हम टाइम में पीछे जाएं, वी विल सी दैट डिफरेंट स्पीशीज दे हैव ओरिजिनेटेड एंड सम ऑफ देम हैव बिकम ऑलरेडी एक्सटिंक्ट. सो हाउ न्यू स्पीशीज कम, हाउ लाइफ बिकेम सो डाइवर्स from a very single cell or a very single primitive organism, that is the point of discussion in evolution. So this is quite a big chapter, but we will not be covering everything in this video. इस वीडियो में हम सिर्फ इनिशियल पार्ट देखेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस. हम केवल ट्रांसमिशन की बात करेंगे कि ट्रेड्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं, उनके पीछे के अंडरलाइंग रीजंस क्या हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज की भी बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे जिन्होंने फंडामेंटल्स बताए हमें हेरिडिटी के बारे में. So here the chapter begins with a very basic information that what is a trait and how it is transmitted. So ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स, कोई भी कैरेक्टर जो है उसको हम साइंटिफिक टर्म्स में ट्रेट कह सकते हैं. जैसे हमारी आंखों का कलर, हेयर का पैटर्न, स्किन का कलर, ये सब ट्रेट्स कहलाते हैं. सो ट्रांसमिशन ऑफ दीज कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड एज हेरिडिटी. इसी को हम क्या कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं. In most simple terms, it means the continuity of features from one generation to another. जब generation by generation कोई चीज़ आगे चलती चली जाती है, inherit होती चली जाती है, उसी process को biologically heredity कहा जाता है. So you might have seen that in previous chapter, पिछले videos में हमने already बात की थी sexual reproduction की, और हमने देखा था कि किस तरह से male parent जो है they produce male gametes, female parent produce female gamete, and that eventually results in the development of a zygote, and then zygote develops or matures into an embryo which forms offsprings. So it is the sexual reproduction and the cells which have those traits or information about those traits. Sexual cells जो है, sex cells जो है, वही उन्हीं के पास इन traits के बारे में जानकारी होती है, उनमें stored रहती है. But at the same time, there are variations which are also brought about. हमने डिस्कस किया कि एक तरफ तो हम बात कर रहे हैं कि ट्रेड्स इनहेरिट होते हैं, दूसरी तरफ हम ये भी बात कर रहे हैं कि 100% ट्रेड एक ही पेरेंट के ट्रांसमिट नहीं होते हैं. There is a process of recombination which takes place. So mixing of various kind of combinations of traits happens
from both the parents, and that brings variations in individual, and these variations are important from the evolutionary point of view. सर्वाइबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, सर्वाइवल ज़्यादा अच्छा होता है अगर वेरिएशंस इंडिविजुअल में होंगे. सो द डिफरेंसेस इन कैरेक्टर्स or traits among the individuals of a species or a population is called variation. जैसे अगर हम आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट हैं तो 10 के 10 स्टूडेंट एक दूसरे से दिखने में थोड़ा अलग है, उसे हम वेरिएशन कहते हैं. लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स से अपने आप को कंपेयर करो तो कुछ चीज़ें आपकी रिजेंबल भी करती हैं. सो हाउ द ट्रेड्स वर इनहेरिटेड from your parents to you, that is heredity, and how you are different from the individuals of humans is variation. After learning these two terms, इन दो टर्म्स को समझने के बाद हम एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट पर बात करेंगे कि ये वेरिएशन जो है क्यों जरूरी होते हैं. तो जैसे जैसे वेरिएशंस एक्यूमुलेट होते हैं किसी पॉपुलेशन में, वैसे वैसे ये किसी भी इंडिविजुअल में किसी एक्सट्रीम कंडीशन या किसी एडवर्स कंडीशन के अगेंस्ट फाइट करने में मदद कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एन इंडिविजुअल हैज एबिलिटी टू, let us say there was a variation in an organism which gave it ability to respire in water. अगर किसी इंडिविजुअल में किसी वेरिएशन की वजह से गिल्स डेवलप हो गए और वो पानी में रेस्पायर करने लगा, लेट्स से ह्यूमंस की हम बात करें कि ओवर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स दे डेवलप्ड गिल्स. सो अ न्यू स्पीशीज ऑफ ह्यूमंस विल ओरिजिनेट which will be able to survive under water. So variations are important, and if they are accumulated over the span of time, which may be sometimes millions of years, that results in improved survivability and therefore divergence of individuals of a population, resulting in a process called speciation. उससे नई species का बनना शुरू हो जाता है. Now you can also see here, आप एक लाइन भी देख सकते हैं इसी चीज से रिलेटेड. द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वेरिएशन टू अ स्पीशीज इज दैट इट इंक्रीजेस द चांस ऑफ अ सर्वाइवल इन चेंजिंग एनवायरनमेंट. डार्विन हैज ऑलरेडी प्रपोज्ड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो. उन्होंने ऑलरेडी प्रपोज किया था कि देयर इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सो हाउ समबडी बिकम्स फिट whereas another organism of the same species is not fit? Because different organisms have different traits, they have variations. तो उनमें से कुछ फिट होते हैं, कुछ उतना फिट नहीं होते हैं. जो ज़्यादा फिट होते हैं वो आगे सर्वाइव करते हैं. दे टेक द स्पीशीज टुवर्ड्स द एवोल्यूशन. नाउ इफ यू लुक एट द मॉलिक्यूलर लेवल, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर जाएं तो ये जो ट्रेड्स हैं, ये जो कैरेक्टर्स हैं, ये हमारी सेल्स के अंदर प्रेजेंट डीएनए में इनकोडेड होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के बेसिस की अल्फाबेट के फॉर्म में. एंड द मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर जो डीएनए है वो एक असेंबली के फॉर्म में होता है, एक बड़े स्ट्रक्चर के फॉर्म में होता है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं. इट इज बेसिकली अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हिच इज मेड अप ऑफ डीएनए. इफ यू डोंट नो डीएनए, इट इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स. डीएनए 3 चीजों का बना होता है. इसमें एक शुगर होती है which is a 5 carbon sugar, ribose or deoxyribose, and it has a nitrogenous base. एक इसमें नाइट्रोजन बेस होता है which may be anywhere between A, T, G or C. It means adenine, thymine, guanosine and guanine and cytosine. तो ये 4 तरह के बेसेस होंगे and there will be some phosphates. So these things together, ये 3 चीजें मिलकर बनाती हैं DNA, and that DNA has all the genetic information which assembles in the form of chromosomes. So I hope by now you understood that how genetic information is stored inside our body. हमारे शरीर में genetic information कैसे store होती है. तो humans की अगर बात करें तो humans की body में total 46 chromosomes होते हैं और वो पेयर्स के फॉर्म में होते हैं क्योंकि एक क्रोमोसोम एक पेरेंट से आता है, दूसरा क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आता है. जब एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो हमेशा पेरेंट्स के अलग अलग पेरेंट्स के ट्रेट्स उसमें होते हैं. जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 2 क्रोमोसोम्स हैं, एक पेयर है. दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड यू हैव इन टोटल 22 chromosomes which are not related to determination of sex. यानी कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ये 22 पेयर जो हैं ये दोनों में एक जैसे होंगे. लेकिन एक पेयर होता है
Here you can see one chromosome is X, another is Y. So perhaps this complete diagram is of a male. If both of them would have been X, that would have been female. So male and female differ only in their genetic makeup at the 23rd pair of chromosome, which is called as sex chromosome. And this is how the entire information about any character in our body is stored in this chromosomes. तो ये जो information है, इसको अगर हम further बात करें कैसे store होती है, तो आप देख सकते हैं कि DNA जो है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस है, जैसे यहाँ A है, यहाँ T है, यहाँ G है, यहाँ C है, तो ये A T G C A T T इस तरह का एक सीक्वेंस that makes an information. It means it makes a code. जैसे कि आप कंप्यूटर बायोलॉजी अगर पढ़ते हैं, कंप्यूटर्स के बारे में जानते हैं, तो वहाँ बाइनरी कोड होते हैं, 0 1 0 0 1, सारी इंफॉर्मेशन इसी में स्टोर होती है. इसी तरह से बायोलॉजिकल सिस्टम में इस तरह से 4 लेटर्स की मदद से हजारों लाखों कॉम्बिनेशंस बनाए जा सकते हैं, एंड ईच कॉम्बिनेशन कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स. सो बेसिकली ये जो पैटर्न होता है एक ट्रेड के लिए, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ जीन, and gene will have this information. So for eye colors there will be different letters code, there will be different gene. For hair pattern there will be different gene. For skin color there will be different genes. इस तरह से genetic information जो है stored रहती है. So genes controlling the same characters of an organism can be of 2 types. Genes जो हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं. The genes which decide appearance of an organism even in the presence of an alternative gene is called as dominant gene. तो देखिए ये जो क्रोमोसोम्स हैं, हर एक क्रोमोसोम क्या है, हर एक क्रोमोसोम पेयर्स के फॉर्म में है. अब मान लीजिए हमारे आंखों के कलर का जीन यहां पर प्रेजेंट है, तो आंखों के कलर का एक और जीन दूसरे पेरेंट से आए हुए क्रोमोसोम पर भी प्रेजेंट होगा. लेकिन इन दोनों जीन्स में से अगर कोई एक जीन अपीयरेंस को डिफाइन करता है, जैसे आंखों का कलर कैसा होगा, वेदर इट विल बी ब्लू और ब्राउन और ब्लैक, इफ इट इज डिसाइडेड बाय दिस जीन अलोन, देन दिस इज ऑफन कॉल्ड एज डोमिनेंट. अभी हम इसको और क्लियरली समझेंगे. सो जीन्स इन एन इंडिविजुअल विल ऑलवेज बी पेयर्ड. हमेशा 2 जीन होंगे किसी भी चीज के लिए, लेकिन एक जीन उसमें से अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसे हम डोमिनेंट जीन कहते हैं. और जो दूसरा जीन है जो अपीयरेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है बट प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज अ रेसेसिव जीन. हालांकि ये बहुत क्रूड डेफिनेशन है. एज यू विल सक्सेसिवली ग्रो टू हायर क्लासेस, यू विल लर्न डीपर मीनिंग ऑफ दीज थिंग्स एंड द मैकेनिज्म्स ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव. सो व्हेनेवर वी ट्राई टू रिप्रेजेंट अ जीन नेम और जीन पैटर्न, वी माइट यूज समटाइम्स बेसिक सिंबल्स. जैसे कि हम एक प्लांट के क्रोमोसोम की बात कर रहे हों और प्लांट में एक ट्रेड हमने यूज किया, प्लांट की हाइट. ये क्या है, ट्रेड है, एक कैरेक्टर है प्लांट का. सो एक ट्रेड हो सकता है कि वो प्लांट जब ग्रो करे तो शॉर्ट रह जाए, या फिर एक ट्रेड हो सकता है कि प्लांट टॉल हो जाए. So height of the plant is a trait which will be controlled by 2 different type of genes. We can represent it symbolically. हम इसको लिख देते हैं कैपिटल T और इस ट्रेट को रिप्रेजेंट कर देते हैं स्मॉल t से. This is how we represent traits in genetics or inheritance biology or heredity. तो हम इस तरह से ट्रेड्स को रिप्रेजेंट करते हैं. वही चीज आप यहाँ देख सकते हैं. टॉलनेस के लिए कैपिटल T यूज किया गया है, और कोई प्लांट स्मॉल है, ड्वार्फनेस है, उसके लिए स्मॉल t यूज किया गया है. तो अब अगर हम प्लांट के अंदर ये दोनों टाइप के जो जीन्स हैं, जीन के जो पैटर्न्स हैं, इनको अगर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, तो देखिए 2 चीजें हो सकती हैं. प्लांट के अंदर या तो दोनों ही कैपिटल T हो सकते हैं, यानी कि दोनों ही जीन्स टॉलनेस वाले हो सकते हैं. कुछ प्लांट में ऐसा हो सकता है कि एक टॉलनेस वाला जीन हो और एक शॉर्टनेस यानी कि ड्वार्फनेस वाला जीन हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही जीन प्लांट्स के अंदर शॉर्टनेस या ड्वार्फनेस वाले हों. सो पेयर ऑफ जीन्स
can form different combinations and these pairs are given additional names. इनको एक additional name दिया जाता है. Each of them is called as allele. इसको हम क्या कहते हैं? Allele कहते हैं. And this entire pair is called as allelomorphic pair. इसको हम allelomorphic pair कहते हैं. So every organism which have pair of chromosomes, for every character they will have an allele and inside the body there will be a pair of alleles. One will be coming from one parent. जैसे हमारे अंदर अगर किसी जीन का किसी करेक्टर के लिए allele है तो वो एक फादर से और एक मदर से आया होता है. अब इस एलिलोमॉर्फिक में हमारी अपीयरेंस कैसी होगी वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों में डोमिनेंट कौन सा है. तो कैसे डिसाइड होता है कौन से कैरेक्टर्स डोमिनेंट होते हैं, क्या इसके लिए कोई लॉ है, इन सब चीज़ों के बारे में हम अभी बात करेंगे. वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. लेकिन उससे पहले हम एक क्विक व्यू, हिस्टोरिकल व्यू देखते हैं एक फेमस पर्सनालिटी का, एक फेमस रिसर्चर का, जिन्होंने ये फंडामेंटल रूल्स बनाए, डिस्कवर किए और जिन्होंने ये बताया कि इनहेरिटेंस का पैटर्न कैसे डिसाइड होता है. सो ही वाज none other than Gregor John Mendel, who laid the foundations of present day genetics. You can see here he was a monk. Basically he worked in a church and he had a large garden behind the church, so he mainly worked on plants of garden pea. आपने भी देखा होगा ये कभी कभी गार्डन में मटर के पौधे उग जाते हैं which have beautiful flowers. So he used to collect the seeds of a pea plant and then he used to sow them back in the soil and looked at the pattern of plants coming out. कई जनरेशन तक उन्होंने उन प्लांट्स के पैटर्न को स्टडी किया and by evaluating the pattern of those pea plants, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये देखा कि एक टॉल प्लांट के सीड लेकर उसको हम ज़मीन में लगा दें तो क्या टॉल प्लांट ही आएगा, एक वाइट फ्लावर वाले प्लांट को लेकर ज़मीन में अगर लगा दें तो क्या वाइट फ्लावर वाला ही प्लांट आएगा. तो उन्हें बड़े सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले और उन्होंने वो सारे रिजल्ट्स को इकट्ठा किया. इकट्ठा करने के बाद उन्होंने उसको फॉर्मुलेट किया और फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आई जिन्हें फाउंडेशंस माना गया जेनेटिक्स की और फॉर्मुलेट किए गए लॉज ऑफ जेनेटिक्स. उन्हें हम मेंडल्स लॉ ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं. तो बेसिकली ये क्या करते थे, ही यूज्ड टू स्टार्ट विद एनी काइंड ऑफ पेरेंट प्लांट. तो पेरेंट प्लांट ले लिए दो, उनको आर्टिफिशियली ब्रीड करा दिया. जैसे एक टॉल प्लांट है और एक शॉर्ट प्लांट है. सो जब उन पे फ्लावर्स आए तो उनकी क्रॉस ब्रीडिंग करवा दी, एक के पॉलन दूसरे पर ट्रांसफर कर दिए. सो दिस इज हाउ ही यूज्ड टू वर्क विद एंड ही डिड क्रॉसेस across different traits like tall and short plants with yellow seeds and green seeds, plant with wrinkled seeds or full seeds. So he used multiple traits, कई सारे traits इन्होंने मटर के plant में use किए and finally he formulated a law. But we will be looking at these laws in detail. हम इन laws के बारे में बात करेंगे, डिटेल में देखेंगे कि कौन से law formulate किए थे. That will be in part 2 of this video. So let us quickly summarize what was in part 1 of this video. हमने अभी तक सिर्फ हेरिडिटी और जेनेटिक्स के बारे में सीखा. हमने ये देखा कि वेरिएशंस क्या होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं और एक इंडिविजुअल के अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है. We learnt about chromosomes, we learnt about the term allele, allelomorphic pair and a brief historical aspect of Gregor John Mendel, who is also considered as father of genetics. So we'll be back in part 2 of this video where we'll be learning more about inheritance and the laws of Gregor John Mendel. I hope you enjoyed this video and your learning is going well. आपकी जो बुक की अंडरस्टैंडिंग है, बुक की जो पढ़ाई है वो इन वीडियोस की मदद से बहुत अच्छी हो रही है. आई एक्सपेक्ट दैट एंड इफ सो यू कैन लीव योर कमेंट्स about the videos. You can also like, share and subscribe so that you get regular updates. Thank you very much for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.